Jai Gurudev students. Welcome students once again in the economics class. Students, in the previous class we have studied about the theory of demand. Demand means desire to buy a commodity with sufficient purchasing power and willingness to spend. डिमांड का मतलब कि हम कोई भी चीज़ को जब हमें खरीदने की इच्छा होती है और उसको खरीदने के लिए हमारे पास उतनी पैसा होना चाहिए और हमारी विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसको पैसे को खर्च करने के लिए, तो ही वो डिमांड कहलाती है. अगर हमारे पास सिर्फ इच्छा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो डिज़ायर कहलाएगी. सो दैट इज डिज़ायर एंड डिमांड बोथ आर डिफरेंट. बट इन डिमांड डिज़ायर इज देयर. डिमांड में डिज़ायर होती है क्योंकि जब हमारी किसी चीज़ की इच्छा होती है तभी तो हम उसे खरीदते हैं. एंड डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट डिमांड मीन्स the different quantities of the commodity that the consumer buy at different prices. And demand quantity demanded, you know कि that specific commodity is purchased a specific price. That is, कोई भी गुड्स जो है अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका डिमांड से इफेक्ट होता है. लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर वो क्वांटिटी गुड्स की डिमांड की उस गुड्स की प्राइस में चेंज होता है तो डेफिनेटली हमारी क्वांटिटी में भी चेंज होगा, डिमांड में भी चेंज होगा. दैट इज स्पेसिफिक कमोडिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस. मीन्स अगर हम पर्टिकुलर कमोडिटी को उस पर्टिकुलर प्राइस में खरीद रहे थे, लेकिन अगर वो प्राइस सडनली बढ़ जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम उतना नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड है. तो दैट टाइम वी आवर डिमांड डिक्रीजेज. और अगर कोई कमोडिटी सस्ती हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है, तो आवर क्वांटिटी इंक्रीजेज. दिस इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड. And students, I have explained you that there are two types of demand, that is individual demand and the market demand. Individual demand means demand of the single person or the single consumer, and market demand, you know, that is demand of many consumer, more than one also, or it can be many consumer, that is market demand. And that you have studied individual demand schedule and the market demand schedule. That is the schedule showing the different quantities of the commodity of individual consumer, and also the different quantities that many consumers wants to buy is known as market demand schedule. And from that schedule, if we are making the curve or the graph, it is known as demand curve. And demand curve is also two types, that is individual demand curve and the market demand curve. So students, today I think you can understand what is demand and what is individual demand and what is market demand. Now today I am going to explain you about the factors affecting demand, or either we can say the determinants of demand, or it is also known as demand function. So what is this demand function? Demand function, you know that it is the functional relationship of demand and the price of the commodity. That means uh, demand can be affected by several reasons. Demand of the particular person can be changed by price, as well as there are other factors also that affects the demand can be changes, and it is known as demand function or फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. मीन्स हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस की वजह से ही हमारी क्वांटिटी में चेंज होता है. मीन्स डिमांड में चेंज होता है. जैसे हम प्राइस की वजह से अगर सस्ती चीज़ें होंगी तो महंगा ज़्यादा खरीदेंगे और महंगी होगी तो कम खरीदेंगे. प्राइस डेफिनेटली प्राइस से तो डिमांड इफेक्ट होती है, बट प्राइस के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड में चेंज होता है. मीन्स हम कम या ज़्यादा कोई गुड्स को खरीदते हैं, एंड दैट इज नोन एज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड द और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं इसको. So today I am going to explain you about the demand function, and it is also known as determinants of demand or the factors affecting demand. And these demand function is of two type: individual demand function and the market demand function. Individual demand function, students, you know that it is the demand of the single consumer. That means there are some factors which affect the demand of some individual person only, not all. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड को ही इफेक्ट करते हैं, सारे एक पर्सन की डिमांड को इफेक्ट नहीं करते, एंड दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स. कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि जो एक साथ कई लोगों की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो इट इज नोन एज मार्केट डिमांड फैक्टर्स और मार्केट डिमांड फंक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यू नो द इक्वेशन इज dx, यू नो डी फॉर डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी. एक्स कमोडिटी को हमने यहाँ पे एक ही कमोडिटी ली है और वो कमोडिटी को हमने नाम दिया है एक्स कमोडिटी, एंड इज इक्वल्स टू एफ. एफ का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप. डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इज हैविंग पर्सनल रिलेशनशिप विद डिफरेंट फैक्टर्स. क्योंकि ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनसे ये डिमांड इफेक्ट होती है. तो उसमें सबसे पहला है पी एक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी; पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स; इनकम; टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस; एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन. सबसे पहले अगर हमने लिया है पी एक्स, पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी.
PX, you know the price of the commodity, students. Price of the own commodity that you have started that quantity demanded also, कि कोई भी गुड्स जो है उसकी ओन कमोडिटी का प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस जो है उससे डिमांड इफेक्ट होती है. इफ द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस. मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है. कोई चीज़ महंगी मिलती है तो हम उसको कम खरीदते हैं, और कोई सस्ती मिलती है तो वो ज़्यादा खरीदते हैं. तो ये पहला जो फैक्टर है हम कहेंगे प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, की कोई भी कमोडिटीज, कोई भी गुड्स जो है उसकी डिमांड प्राइस के ऊपर इफेक्ट करती है. कि अगर प्राइस महंगी ज़्यादा है तो कंज्यूमर विल बाय लेस, एंड प्राइस इज लेस सो कंज्यूमर विल बाय मोर, एंड इट इज़ नोन एज प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. इसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, कि लॉ ऑफ डिमांड भी यही बताता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस, and the price of the commodity decreases, the demand of the commodity increases. So it is, that is why it is, we are saying that price, there is an inverse relation between price and demand. So students understand कि PX का मतलब है प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. दैट मीन्स कोई भी कमोडिटी का प्राइस इफेक्ट करता है, कि प्राइस अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर विल परचेज लेस, और प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर विल परचेज मोर. नाउ सेकेंड इज PR. PR, students, you know, price of the related goods. Price of related goods. Related goods, you know, related goods are of two type, like substitute goods and second is complementary goods. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो है वो दो तरह के होते हैं. रिलेटेड, यू नो, रिलेटेड मीन्स जो दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, इससे भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है. एंड देयर आर टू टाइप, लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाए. सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है कि वो गुड्स जो हम एक के बदले दूसरे को यूज़ कर सकें. सपोज व्हेन वी आर नॉट हैविंग द पर्टिकुलर गुड्स, हम उसकी जगह उसकी जैसा दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं. जैसे टी और कॉफ़ी. टी और कॉफ़ी इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स. Suppose if we want to drink tea, but tea is not available in our house, चाय पत्ती हमारे घर में नहीं है, तो उसकी जगह हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं. They are substitute goods. If we wants to drink coffee, but coffee is not there, so we can drink tea. So tea and coffee are the substitute goods. So substitute goods also affect the demand of the commodity. Like when the price of the tea increases, people will demand of the coffee rises, or when the price of the coffee increases, the demand of the टी राइजेस. मीन्स अगर प्राइस चाय का टी का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर विल नॉट परचेज टी. इंस्टेड ऑफ टी कंज्यूमर विल गो फॉर कॉफ़ी. अगर चाय पत्ती का प्राइस बढ़ेगा तो चाय की जगह कंज्यूमर कॉफ़ी पिएगा. कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जगह चाय पिएगा. मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसकी दूसरे गुड्स की, उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है. और एक का प्राइस कम होता है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, उसी को ज़्यादा खरीदेंगे, जो चीज़ जिसका प्राइस कम हुआ है. तो इट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स. मीन्स दे आर रिलेटेड गुड्स बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद ईच अदर. दोनों के जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूट है, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी जगह कंज्यूमर दूसरा गुड्स खरीदेगा. द सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यू नो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच आर टेकन टुगेदर. मीन्स ये दो अलग अलग गुड्स होते हैं, लेकिन इनको हम एक साथ ही लेंगे तभी इनका we can satisfy, our satisfaction will complete. Like car and petrol, or pen or ink, bread or butter. Suppose कार और पेट्रोल, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल. अगर हमने कार खरीदी या हमने कोई भी गाड़ी खरीदी बट हमने पेट्रोल ही लिया तो देर विल बी नो यूज. बिना पेट्रोल के कार का कोई यूज़ ही नहीं है. तो बोथ शुड बी टुगेदर, टेकन टुगेदर. लाइक अगर हम कार लेते हैं तो हमें पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, तभी हमारा वो सेटिस्फेक्शन, हमारे वो काम पूरा हो पाएगा. इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द टू डिफरेंट गुड्स but they can satisfy the demand for each other. That is, they should be taken together. इनको हम दोनों को जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, हमारी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं होगा. So complementary goods means they are should be used together, like car or petrol, pen or ink. So just like if what happens is the demand factors in complementary goods. Suppose car or petrol, price of the car increases, so the demand of the petrol decreases. Why? Because if the price of the car increases, so people will not purchase car. So it will have the same effect on their complementary goods also. And suppose if the price of the car decreases,
so the demand of the car increases and same way the demand of the petrol also increases. So कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो है डिमांड एक साथ मूव करती है. अगर एक गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी डिमांड बढ़ेगी. सब्स्टिट्यूट गुड्स में अलग है. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, so they should not be taken together, they can be replaced one by other. So if the price of the substitute goods increases, the demand of the other goods will increases. जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है एक साथ हम यूज़ करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस डिमांड जो है उसकी सेम वे में मूवमेंट डायरेक्शन में मूव करेगी. जैसे अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी. कार का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी. सो स्टूडेंट दिस इज नोन एज द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स मीन्स जो गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड है. हाउ दे आर रिलेटेड? बिकॉज दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो आई हैव एक्सप्लेन PX and PR. Now the next example is price of that income. Why? Why for income? Income also affect the price of the commodity. That if the income of the consumer rises, so the demand also rises, and if the income of the consumer falls, the demand also falls. Like income also has two types. According to income, the goods may be divided into two categories, that is the normal goods and the inferior goods. Normal goods, the students, the goods which we are used in our daily life, and they can be used like just like we are using any of the goods. So if the price of the goods increases, so we can purchase less, and if the price of the goods decreases, we can purchase more. So they are normal goods. Inferior goods, inferior goods are the goods which are very cheap goods. So if our income increases, so we can purchase less of inferior goods, and if our income decreases, so we are purchasing more of inferior goods. So income, students, income, Y for income, that is Y means income. Income also affect the price of the commodity, and according to income, there are two types of goods: inferior goods and normal goods. inferior goods का मतलब cheap goods. अगर हमारा इनकम बढ़ती है तो हम inferior goods को कम खरीदेंगे, so demand of inferior goods falls. और अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम ज़्यादा inferior goods खरीदेंगे तो demand of the inferior goods rises. Normal goods, normal goods are the goods which generally we are using in our daily life. So if our income increases, so we are not using if our income increases, so we are using normal goods also. So normal goods demand also increases, and if our income decreases, so normal goods demand also decreases.